अभी जो पहले का सिस्टम था कि हमको टीचर बनना है, चॉक यूज करना है, पेन यूज करना है, नहीं, अब ये स्टूडेंट्स के साथ वी हैव टू बिकम अ फ्रेंड. तो अल्हम्दुलिल्लाह, at some point or the other point, it is the teachers that they have touched their lives. She is feeling in the shoes of others. By learning from the others, she can learn many of the things and she can deal with the students like that. ये हमारे प्रोफेशन के लिए एक बहुत बड़ी बात होगी कि हम बच्चों को एटलीस्ट पूरे दिन में एक चीज सिखा सके. बच्चों को क्वांटिटी ऑफ टाइम एक आपके 8 to 9 hours नहीं चाहिए. They want a quality of time and it should be consistent. MS Education Academy, preparing world-worthy individuals. All dear teachers, welcome to the show. Welcome to Guftagu. Thank you, sir. Thank you, sir. मैम, उषा मैम से हमारी बात गुफ्तगू शुरू करते हैं. आपका जो इंस्पिरेशन रहा है टीचिंग जॉब में आने का और बीएड सेलेक्ट करने का, या जो भी आपका क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करने का, देन यू स्टार्ट विद द टीचिंग प्रोफेशन, क्या रहा वो आपका इंस्पिरेशन मोमेंट? So first of all, good morning, sir. Sir, I think, sir, actually I wanted to become the doctor actually. So I wanted to take MBBS actually. So in MCET I got 33,000 ranks, so that is. So I came into, I did my BSc, then I did my MSc, then I came into this teaching field. I got married actually. So then I thought that this job would be the better job, where it will be is becoming round off timing, that is being comfortable. As a mother, as a teacher, I would be comfortable in this job. That is the reason I have choose this job, so that I can do the justice with the students as well as my children, that is. Nice. उषा मैम ने कहा कि कुछ और बनना चाह रहे थे, राइट? और फिर जब फैमिली सिचुएशंस को देखें तो तब जो है उन्हें ऐसा लगा कि टीचिंग इज़ अ अप्रोप्रिएट प्रोफेशन फॉर मी, राइट? आपके लिए क्या इंस्पिरेशन रहा? So teaching actually is my hobby. As far as I think, hobby usually the people will do when they are leisure and they do for pleasure. But for myself, it's my hobby. I want to teach. At the same time, I want to learn the things. Teacher बन के मैं एक ऐसा रिसोर्स बनना चाह रही थी जिससे मैं किसी के काम आ सकूं. अगर मैं अर्न करती हूँ तो फैमिली के काम आ सकूँ, अगर नहीं तो फिर मैं अगर शेयर करती हूँ तो मैं मेरे स्टूडेंट्स के काम आ सकूँ और मेरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर सकूँ. सो नाउ आई एम हैप्पी विथ माय प्रोजेक्ट. नाइस. सर, अपने पास एक केस है बाई चांस का, एक केस है बाई चॉइस का. क्या कोई और भी क्राइटेरिया है या फैक्टर है जो ये प्रोफेशन को सिलेक्ट कराता है? There are just two factors, either by choice or by chance. So I do fall under the category of by chance. Okay. It might be a chance for me, but the one who thinks it's a chance for us, we are being actually the chosen ones. Oh, nice. Even I was an aspirant for engineering. So as I was preparing for the MCET, so simultaneously I started my career as a tutor. But after a batch or a two, when I was getting a positive feedback from the parents, and I felt that I could impact the lives of the students, who is going to be the future of our nation. Right. So then I realized that God has bestowed on us these skills, Right. and He wants us to be in this path. So finally, I determined that I need to pursue what He has chosen and not what I was thinking too. So that was a priority for us. So then I came into teaching, and really we are all passionate about it, and we really enjoy it. Alhamdulillah. उषा मैम, आपने कहा कि जो वर्क लाइफ बैलेंस जिसका आप तस्करा कर रही थी, अंडर करंट जो थीम आपकी थी बात की, कि अगर हम टीचिंग जॉब में आते हैं तो हम हमारे जो पर्सनल लाइफ है उसको भी अच्छी तरीके से बैलेंस कर सकते हैं. ऐसे कोई इंसिडेंट और ऐसी कोई वाक़या इवेंट आप शेयर करिए ना, जिसमें यू हैव सक्सेसफुली डेमॉन्स्ट्रेटेड दिस, कि आपके जो प्रोफेशनल लाइफ है वो भी आपने अच्छा परफॉर्म किया और साथ ही साथ आपका जो फैमिली लाइफ है वो भी आपने अच्छी तरीके से देखा. Sir, actually we can see that when we go for teaching, actually we need to prepare and we need to go Right. for the teaching, that one. So it depends on the basic what knowledge we have actually. So I'm saying that is whatever knowledge I have, I don't keep that much of effort
to teach for the students, because I just see for few minutes and I go with the teaching, that is. But when I see my students, my children, that is, we have to prepare for them. Morning we have to get up, early morning we have to do that, and after coming is going to the school again, teaching to the students, then coming back to the home, then you can see that we have to run after the children, that is. So you can see that we have to balance both of the this one life, we can see. I think so I'm doing the justice for both the students as well as my children, where I think I am that kind of personality where I can go with rough and tough, whatever we can see that on both the sides I can balance, you can see, that is. मैम अगर हम, आपने कहा कि आपका पैशन था टीचिंग का, तो आप हॉबी की तरह आगे बढ़ी हैं और फिर आप प्रोफेशन के अंदर आई, तो इसके अंदर जो मोस्ट डिफ़िकल्ट स्टूडेंट या चैप्टर रहा है उसको आपने कैसा डील किया, अगर आप शेयर करेंगे? सर मेरा 14 इयर्स का एक्सपीरियंस है, तो माशाल्लाह 100 ऐसे स्टूडेंट को देख चुकी हूँ जो मतलब बहुत ज़्यादा आउट ऑफ द वे जाके काम करते थे, लेकिन वो लोग उनके साथ डील करना, इट्स वेरी डिफिकल्ट टास्क, नॉट ओनली फॉर द पेरेंट्स बट फॉर द टीचर्स ऑल्सो. लेकिन अगर हम उनके एक गाइड बने, या अभी जो पहले का सिस्टम था कि हमको टीचर बनना है, चॉक यूज करना है, पेन यूज करना है, नहीं, अब ये स्टूडेंट्स के साथ वी हैव टू बिकम अ फ्रेंड, वी हैव टू अंडरस्टैंड, गो टू देयर लेवल एंड अंडरस्टैंड देयर थिंकिंग. एक बार अगर हम उनकी सोच को समझ चुके हैं तो हम उनकी प्रॉब्लम को समझ चुके हैं. अब जब हमारी कोई प्रॉब्लम हम उनके नजरिए से देखते हैं तो वो आसान करने में हल करने में आसानी हो जाती है. तो बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स है जो बच्चे पढ़ते नहीं थे, शरारत करते थे, जवाब देते थे, और बहुत सारे तो ऐसे इंसिडेंट्स है कि बच्चे थोड़ी देर के लिए घर से बाहर भी चले जाते थे पेरेंट्स को परेशान करने के लिए. लेकिन जब उनके लेवल पे गए और उनके लेवल पे उनकी प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड किया गया और उनको काउंसिल किया गया, उनके साथ टाइम स्पेंड किया गया, तो बहुत सारे ऐसे केसेस है अल्हम्दुलिल्लाह कि हम वो सब सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके. बस सर, आपने कहा कि द इम्पैक्ट द टीचर कैन हैव ऑन स्टूडेंट्स लाइफ, बहुत सही बात आपने कही. क्या ऐसे इंसिडेंट्स आपने देखा आपके टीचिंग प्रोफेशन में जहाँ पर स्टूडेंट ने आपको इम्पैक्ट किया है? सो ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं सर. मेरे पास एक एकदम लो मिडिल क्लास से आने वाले बच्चे होते हैं. सो देयर वाज अ स्टूडेंट आई रिमेंबर जिसका नाम शिवसाई है. तो ही यूज्ड टू एक्सप्रेस कि भाई माय पेरेंट्स हैव फोर्स्ड मी और मैं आ रहा हूँ, आई एम वेरी रिलक्टेंट, अनविलिंग, बट I don't know what has sparked in him. Maybe it could be the personality of the teachers, because it is said that do not be apprehensive, they are not listening to you, but be cautious. They are watching you, they are learning from you, they are imitating you. Fantastic. So maybe something has really impacted him. So in a month or two we could see drastic changes in him. So he used to even stay back after the classes. तो वो पूछता था कि भाई ये कैसे करना है सर, मैंने ऑल्टरनेटिवली ऐसे करके बताया, तो इज दिस ट्रू, इज दिस करेक्ट, कैन वी गो विद दिस मेथड एंड ऑल. सो आई हैव सीन लाइक नॉट जस्ट अ ग्रेजुअल पॉजिटिव चेंज टू इन हिम. तो एक ड्रास्टिक माशाल्लाह चेंजेस आए, एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई कुड बी अ प्राउड टीचर. He has completed his IIT and very soon he'll be placed soon inshallah. तो नॉट जस्ट ही अलोन. सो दे ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द टीचर्स मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऐसे बहुत ज़्यादा बच्चे हैं माशाल्लाह जिसको कोई करियर गोल नहीं था, जिसको पर्पस ऑफ लाइफ नहीं मालूम था. तो अल्हम्दुलिल्लाह एट सम पॉइंट और द अदर पॉइंट इट इज़ द टीचर्स दैट दे हैव टच्ड देयर लाइफ्स, एंड अल्हम्दुलिल्लाह दे आर ऑलवेज grateful to the teachers, and they always pay visits whenever they visit their homes and the families. तो जब कभी अब ये जो बंदा IIT पढ़ रहा है तो जब कभी भी आता है तो they visit us. कैसा लगता है आपको? तो अल्हम्दुलिल्लाह we feel rewarded for it. उषा मैम, आपने कहा चिल्ड्रन के बारे में. एक बात बहुत एक कंसेप्शन है, एक मिथ है दिमाग में, अक्सर पेरेंट्स में रहती है कि जब वो अपने बच्चों को, स्टूडेंट्स को, अपने बच्चों को जब स्कूल में भेजते हैं तो वो ये देखते हैं कि ये पर्टिकुलर टीचर के खुद के बच्चे हैं क्या, और उनके जहन में ये बात रहती कि अगर आपके बच्चे हो
तभी आप जो है दूसरों के बच्चों की वैल्यू कर सके या उनकी परेशानी को समझ सके। ये एक कंसेप्शन एक पेरेंट के दिमाग। क्या ये ज़रूरी है कि टीचर जो टीचिंग जो प्रोफेशन ऑप्ट करते हैं उनको एज ए मदर दे हैव टू गो थ्रू दैट लाइफ, और वो देख कर भी सीख सकते हैं? Yes, sir. Actually, you can see that it's not compulsory that the teacher should be the mother. राइट। You can see that even though she is not the mother, she can understand the feelings by looking at the other teachers. You can who are the mothers, that is. So it's not right. I think so that even if the teacher is not a mother, she is feeling in the shoes of others. By learning from the others, she can learn many of the things and she can deal with the students like that. I feel that, sir. Nice. नाज़िमा मैम, प्रोफेशन हॉबी से शुरू होके फिर प्रोफेशन में आप जो एक टीचर है जो बाय चांस आया है, एक है बाय चॉइस, तो आपकी कैटेगरी मोस्टली बाय चॉइस में आता है, लेकिन सर ने कहा कि बाय चांस में आने के बाद भी जो है इट्स लाइक अ चूजन थिंग। दैट्स फैंटास्टिक पर्सपेक्टिव। अगर हम देखें कि जो दूसरे स्टाफ मेंबर्स होते हैं, दूसरे टीचर्स होते हैं जो बाय चांस अगर आए हैं, राइट, तो उनके साथ कोऑर्डिनेट करने में आपको किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है? कोऑर्डिनेशन कितना इम्पोर्टेंट है दूसरे टीचर के साथ? अगर आपस में एक दूसरे से कोऑर्डिनेशन हम नहीं बना के रखेंगे तो हम आगे जो बच्चों को हम नॉलेज देंगे वो क्या देंगे? कोऑर्डिनेशन, हाँ, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो आ जाते हैं विदाउट चॉइस, लेकिन उनको समझना, उनके साथ बात करना, उनको फील करवाना कि आप भी वी बिलोंग टू द सेम थिंग, हम ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं और इट्स वेरी इजी फॉर अस थोड़े दिन में। जी। फॉर एग्जांपल एक जो चैलेंज जो अक्सर टीचर्स में आता है कि जो रिप्लेसमेंट का रहता है, रिप्लेसमेंट यानी कि अगर टीचर एब्सेंट है उस दिन तो आपको वो क्लास लेने सब्स्टिट्यूशन के लिए आपको जाना रहता है। तो इसमें बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि जो है सब्स्टिट्यूशन के वास्ते के लिए जो है अपने टीचर्स आगे पीछे होती है। तो ये सिचुएशन में कैसा हैंडल करना है टीचर को? सर, ये सिचुएशन हैंडल करना तो इवन हमको भी मुश्किल पड़ता है कि अगर कभी हम जाते हैं किसी के सब्स्टिट्यूशन पे, लेकिन ये बात उनको भी समझनी चाहिए और हम भी उनको यही चीज़ से समझाते हैं कि ये वक्त बच्चों के लिए ज़रूरी है। ये हमारा गुजर चुका है, लेकिन अभी हम जो उनको टाइम देने वाले हैं, जो हम सब्स्टिट्यूशन में जाने वाले हैं, उससे हम उनको कुछ सिखा सकें। ये हमारे प्रोफेशन के लिए एक बहुत बड़ी बात होगी कि हम बच्चों को एटलीस्ट पूरे दिन में एक चीज़ सिखा सकें। इफ नॉट हम उनका पूरा चैप्टर पढ़ाते हैं, ये जरूरी नहीं है कि चैप्टर पूरे का पूरा उनके दिमाग में उतरे। एटलीस्ट अगर हम सब्स्टिट्यूशन में जाएं या फिर हम हमारी क्लास के थ्रू उनको एक वर्ड भी समझा सकें जो वो अपनी पर्सनल लाइफ में फॉलो कर सके। कोई एथिक हो सकता है, कोई सजेशन हो सकता है, कोई ऐसा नया वर्ड हो सकता है वो जो जानते नहीं थे। तो ये बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा होगा और टीचर को भी फील होगा कि अरे हाँ, दे आर नेक्स्ट डे व्हेन दे आर डू इन फ्रंट ऑफ द टीचर दे फील लाइक हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं जो चीज़ के लिए गई थी वो कंप्लीट हो चुकी है। सर, मैम की बात से 3-4 सवालात में जो अंडर करंट थीम जो रही है वो जो है टाइम इन्वेस्टमेंट की रही है कि जो है ना हम स्टूडेंट के साथ कितना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, राइट, इन्वेस्ट कर रहे हैं, स्पेंड की जगह पे मैं इन्वेस्ट कहूँगा। उसी तौर पे अपने साथ वाले टीचर के साथ कितना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं समझने के लिए उनको। ये तो टीचर की तरफ से हुआ। क्या आप ये बता सकते हैं कि पेरेंट की तरफ से क्या टाइम इन्वेस्ट करना टीचर के साथ और स्टूडेंट के साथ इम्पॉर्टेंट है, और अगर इम्पॉर्टेंट है तो कितना वो टाइम एक एवरेज में स्पेंड करे, इन्वेस्ट करे? अक्सर हम इस चीज़ पे ये सुनते आते हैं कि पेरेंट्स दिस डेज यू नो they are busy struggling for earning a living, or I shouldn't say, but some are busy with other things, right. So you know they have a perception कि भाई once in a week they take a week off completely, कि एक दिन बच्चों को लेके बाहर निकल जाते, उनके साथ खाते पीते करते थोड़ा सा एंजॉय करते आते। बट आई डोंट थिंक इट यू नो इज सफिशिएंट। हाउ कम? यू नो कि बच्चों को क्वांटिटी ऑफ टाइम एक आपके 8 to 9 आवर्स नहीं चाहिए। दे वांट अ क्वालिटी ऑफ टाइम एंड इट शुड बी कंसिस्टेंट। ओके, एवरी डे ऑन एन एवरेज व्हाट आई फील, यू नो, कितना भी आपका हेक्टिक शेड्यूल हो, यू नो, एवरी पेरेंट हैज टू स्पेंड मिनिमम 1 hour विद द चाइल्ड एज ए फ्रेंड। ओके, कि बच्चा जहाँ पे अपने आप को एक्सप्रेस कर सके, खुल के आ सके और बच्चे को समझ सके, क्योंकि जैसा कि देखिए बच्चे एक अलग अलग फेज से गुजरते हैं।
अब ये एक ऐसा दौर होता है जब तक प्रिपरेटरी स्टेज है, जो बिलो 5th स्टैंडर्ड ग्रेड है, तब तक बच्चे जो है ज्यादातर दे आर वेरी नेग्लिजेंट, दे डोंट हैव अ रियलाइजेशन, दे आर वेरी प्लेफुल एंड ऑल. तो तब उनको क्योंकि बट दे आर गोइंग टू बी द फ्यूचर, तो उनको एहसास दिलाना है, उनको ऐसा ऐसा जिम्मेदारियां समझाना है, तो वो स्टेज हुआ. फिर उसके बाद जो मिडिल स्कूल का स्टेज होता है, बच्चे जब मैनिपुलेटिव बहुत हो जाते हैं, दे स्टार्ट टू मैनिपुलेट व्हाट दे से एंड ऑल, बहुत ज्यादा फैब्रिकेट करना शुरू कर देते स्टोरीज एंड ऑल. सो उस समय वो स्टेज और क्रूशियल है, क्योंकि इफ यू डोंट गाइड देम तो देयर आर चांसेस दैट दे कुड मिसलीड करेक्ट themselves. तो वो टाइम पे भी क्योंकि पेरेंट जब एक एक पर्सनल टच दे, तो बच्चों को वो जो मिसिंग पार्ट है, इसके लिए बच्चे है ना, दे आर फाइंडिंग कंफर्ट विद अदर थिंग्स. जब पेरेंट्स नहीं दे पा रहे वक्त, तो कंफर्ट के लिए दूसरी जगह जा रहे हैं, दूसरी जगह वो प्यार मोहब्बत आज हम सब देख रहे हैं. सो वो चीज यहाँ से बच्चों के पास ये दे आर चिल्ड्रन लाइक हाँ, तो वो उनके पास आ जा रहा है, वो इंटरनलाइज हो रहा है कि लाइक वी आर मिसिंग दैट, वी कुडंट फाइंड इट विद द फैमिली. तो दे इजीली गेट ट्रैप टू अदर्स एंड ऑल. एंड देन गोइंग फॉरवर्ड जब हाई स्कूल आ रहे हैं या फिर 11th 12th पे आ रहे हैं बच्चे, तो अगेन दे आर गोल ओरिएंटेड नहीं होते कि भाई क्या करना है. राइट. Because that's a very important transitional stage for them, कि that is going to decide their career and all those dependents associated आने वाले में. तो उस समय भी पेरेंट्स को ये देखना है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा वक्त दे बच्चों को, बच्चों की रहनुमाई करे और उनको बताए कि इट इज नॉट जस्ट अर्निंग अ लिविंग, कि एक एथिकल, एक गुड ह्यूमन बीइंग कैसे हमको बनना है, वैल्यूज ओरिएंटेड, उनमें वैल्यूज इनकलकेट करना है. तो और उसके साथ साथ ये पेरेंट कैनॉट डू एवरीथिंग एट होम, क्योंकि they do have their own responsibilities to carry out. So we could see that on an average it is 6 to 7 hours a day. Every child spends time with the teachers. Correct. तो हाउ इट एकेडमिकली नहीं, बिहेवियरली बच्चा कैसे है, उसके बिहेवियरल इश्यूज, घर पे कुछ अगर उसके पास नेगेटिव इमोशंस है, तो उसको यहाँ पे वो लोग कभी कभी लेकर आते हैं. जब उनको वेंट आउट नहीं मिलता, तो वो वेंट आउट यहाँ पे लेके आते हैं, वो पेंटिव इमोशंस को. कभी उनके पास एग्रेसिव बिहेवियर आता, दे आर आइसोलेटेड एंड ऑल, देयर एन नंबर ऑफ साइकोलॉजिकल इश्यूज विद देम. तो दैट आर नॉट अगेन exhibited or shown at homes. Correct. Parents don't see that. They hide everything. So unless and until parents take out their time, valuable time, तो तभी बच्चों का ऑलराउंड डेवलपमेंट हो सकता है. इट इज नॉट जस्ट द एकेडमिक्स. एकेडमिक्स ऑफ कोर्स एन इम्पॉर्टेंट, ए क्रूशियल पार्ट. उसके साथ साथ बच्चे का साइकोलॉजिकल वेलबींग उतना ही इंपॉर्टेंट है, उन्हें सोशली कितना कनेक्टेड है, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है. तो आई रिक्वेस्ट ऑल द पेरेंट्स हु विल बी वाचिंग दिस इंशाल्लाह कि बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करें और एट द सेम टाइम टीचर से रेगुलर कम्युनिकेशन में रहे. जी, एक बहुत बारीक बात आपने कही बसीर सर, कि अब तक ऐसा समझा जाता था कि जो स्टूडेंट्स स्कूल में सीखते हैं वो जाकर अपने घर में या अपने फैमिलीज़ में उसको वो रिफ्लेक्शन आता है. लेकिन आपने कहा कि घर में भी जो चीज़ें, जो इमोशंस एक्सप्रेस नहीं हो पाए हैं, वो जो है क्लासरूम में आकर बच्चे एक्सप्रेस कर देते हैं. नाज़रीन, हम यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं. हमारी ब्रेक के बाद गुफ्तगू जारी रखेंगे. So technology does have lot of advantages. क्यों same thing goes in the class कि बच्चे क्या expect करते हैं कि not the daily mundane routine. Tracking the students and making the students in the way which was being there before the pandemic situations. तो आपको अटेंशन होल्ड करना आज के दौर में थोड़ा सा ఛాలెంజ్ है. మా టీచర్ ఇలా చేస్తారు, ప్రైమరీ లెవెల్ పిల్లలు ఎంతగా గమనిస్తారంటే ఇంటికి వెళ్ళి ద సేమ్ థింగ్ వాళ్ళు రిపీట్ చేస్తారండి, అలాగే రిపీట్ చేస్తారు.